Green, sir. Yes, voice is clear? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, let's start it. Yes. Everything is clear now? Voice is clear? Yeah, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so in the last class, what we were discussing? We were discussing the Symmetry operations. symmetry operation, right? So I have told you about the translation symmetry operation. What I discussed, that anyone will tell what is a translation symmetry operation? Anyone? किसी लेटेस्ट पॉइंट पे अगर हम ट्रांसलेशनल सिमेट्री अप्लाई करते हैं तो हमें दूसरा लेटेस्ट पॉइंट मिलता है. And the main condition It is should be identical. it should be identical. Okay. The translation symmetry operation state that when we apply the translation operation on any lattice point, and after that operation we get a new lattice point, then that lattice point which we are getting must be identical for the former from the former. Understood? Yes, sir. And Yes, one thing I told you also, that every crystal must follow the translation symmetry. It is a mandatory for every crystal. Okay, every crystal must follow the translation symmetry. Just write it down as note, that every crystal must follow the translation symmetry. Must follow the translational symmetry. And one more thing we discussed, that rotational symmetry, in the rotational symmetry, that five-fold, we talked about the five-fold rotation, and I said that five-fold rotation does not follow the translation symmetry. That's why it is means not possible for the crystal, right? So let's start with the rotational symmetry operation. Okay, let's start with second is rotational symmetry operation. Yes, Doubt. yes. Sir, I have a doubt regarding Wigner's cell. One हाँ, small doubt. Sir, हाँ, जो Wigner सेल था, आपने बताया था कि वो एक मेथड है प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने का. तो क्या हम उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का पार्ट मान सकते हैं विग्नर साइड मेथड को? नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं. आप मैथ उसका पार्ट कैसे मान सकते हो? बिल्कुल नहीं मान सकते. Wigner seeds is basically just a method. If we apply that method on any particular crystal, then we can get the primitive lattice. Okay, so means that is totally different thing. I'm Yes, mixing. obviously. That's why I Okay. told last yesterday also. Okay. Thank you. So the today's concept is rotational symmetry operation. Anyone will tell what is the rotational symmetry, if anyone knows? Sir, it is defined as if a structure is rotated about its axis at an angle, let's say theta, that then it remains invariant or unchanged in configuration. It's called rotational symmetry. Okay, so can we rotate a crystal at any angle? See, as you So it said rotates, that we have in angle pi by 2. angle pi by 2 only. We can rotate at any angle, but rotational symmetry is possible for a fixed angle. Yes, exactly. Because when you apply the rotational symmetry on a particular crystal and you rotate the crystal by at angle theta, then you have to be so sure or be so careful that the angle must be that angle on which the crystal maintain their symmetry. Okay, I'm giving you example. It is visible for everyone. The point A, B, C, D. It is written here or not? No, sir. No. No, Yes, Not sir. visible. No, sir. Can't see. Not okay. You can't see. But the Okay. paper is visible now, sir. Okay. No issue. Let's suppose I have mentioned here. I given this example yesterday also, right?
See, I mentioned this point A, B, C, and D. What I wrote on this paper. Okay. Let's suppose this is a square lattice. This is a square lattice crystal. Okay, this is a two-dimensional lattice. See, I said I am operating rotational operation. Okay. I just operate the rotational operation and rotate this crystal by an angle 90 degree. So as I rotate this by 90 degree, so will this be like that? Yes, No, yes. Yeah, B will be at now this point, B at this point, A at this point, C at this point, and D at this point. Okay. You see what I did? I rotate by 90 degree. मैंने 90 degree से इसको rotate किया है. You are saying that, okay, sir, let's come to the initial position. You are saying, sir, can we rotate it by 45 degree? Okay, let's rotate. I have rotated by 45 degree. Please tell me whether this structure after rotation of 45 degree is symmetrical to that structure from No. earlier one? No, it is not. no, sir. No, No? sir. No, sir. So No, sir. 45 degree can't be the angle for this square lattice. समझ रहे हो ना आप लोग? हमें वो angle choose करना है. We have to choose that angle. On that angle, the crystal maintain their rotational symmetry. Okay. Okay. So you said, okay, sir, I have rotated by 90 degree. Now what? Just rotate it again 90 degree. Okay. How many times I rotate this? 2 times? Yes, sir. 2 times? And, 180. and again, it maintain their symmetry. Okay. 2 times. Now, I am saying rotate again 90 degree. You rotate just again 90 degree. How many times you rotate? 3 times. 3 times. Okay. And again, crystal maintain their rotational symmetry. And now I said again rotate 90 degree. Now I have again rotated this at 90 degree. See, B reached their position, A reached their position, C reached their own position, and D also reached on their position. सर 3 टाइम करने के बाद कैसे मतलब 270 को तो नहीं 4 टाइम मिलाएगा मैंने 4 टाइम कर दिया ना, 4 टाइम भी रोटेट कर दिया मैंने. हाँ लेकिन जब 270 पे आएगा ना तब वो रोटेशनल सिमेट्री कैसे लेगा? क्यों नहीं ले? अरे क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? Let's suppose this is a square lattice. I am telling you again. This is a square lattice. Yes, देखो, sir. if you rotate it by 360 degree, then obviously this is so obvious that it will Yes. maintain their rotational symmetry. Yes. But while rotating 360 degree, there is a certain angle for every crystal. On that angle, crystal maintain their symmetry. So if this is a square lattice, okay, if this is a square lattice, so how many times you can rotate it? By that means that crystal maintain their symmetry. 4 times. 4 times. Once you rotate 90 degree, I have rotated this 90 degree. See, this is not rectangle. This is rectangular paper, but consider it as square. Okay, consider this as square. Yes, sir. It is square then okay. ठीक है, 90 डिग्री रोटेट किया एक बार, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है ना, सिमेट्री मेंटेन कर रहा है. मैंने बस फिर से रोटेट कर दिया. कितनी बार रोटेट किया? 2 बार रोटेट किया. एंगल टोटल कितना वो 180 डिग्री. 180. Crystal again maintaining their rotational symmetry. Again I have rotated 90 degree. What is the total angle of rotation? 270 degree. 270 degree. And again Yes. crystal maintain their rotational symmetry. And now Yes. again I rotate 90 degree. So the total angle is 360 degree. 360 degree. 360 degree, and again the crystal maintain their rotational Symmetry. symmetry. Sir, Yes. while सर रोटेटिंग द सिमेट्री, हमें सर ये ध्यान रखना होगा ना कि जो लैटिस हमारा जो पहले जिस पोजीशन पे था वो लौट के उसी सेम पोजीशन पे सर आए. नहीं, लैटिस का पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है, बट जब बाहर से जो अपीयरेंस है ना क्रिस्टल का, वो नहीं चेंज होना चाहिए. जैसे कि ये स्क्वायर लैटिस था, आप मुझे बताना ये स्क्वायर लैटिस है, ठीक है ना. अगर मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. यस सर. शुरुआत में ये स्क्वायर था, अब ये कैसा थोड़ा टिल्टेड स्क्वायर बन गया ना ऐसे करके, तो अपनी सिमेट्री कहाँ मेंटेन कर रहा है. ऑल्दो लैटिस पॉइंट हैज बीन चेंज. लैटिस पॉइंट कहाँ था? पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच चुका है वही लैटिस पॉइंट.
Okay, Yes, so the lattice point or atoms can be interchange their position, but from look of the outer side, the appearance must be similar or identical. बात समझ में आ रही है? जी. Okay. That means it is invariant. Sorry? Variant under rotational symmetry. Yes, exactly. It is invariant under rotational symmetry. The crystal should be invariant under rotational symmetry. That's what I'm telling. Okay? So, Okay. जैसे कि आपको ये चीज तो पता चल गया, you all get know that, okay, if there's a square lattice and if I rotate it by 360 degree, then it is so obvious that it will reach on there, means it will hold their rotational symmetry. It is so obvious. Nothing new about that. But just I show you by example, while rotating complete 360 degree, how many times you have rotated by at angle so that it has been hold their rotational symmetry? 4 times? Yes, sir. So this 4, what is this for? This is a fold of rotation. This is called the fold of rotation. Okay. So what is this basically? This is a fold of rotation, that how many times you have to rotate the crystal so that the crystal may maintain their rotational symmetry. सबको समझ में आ रहा है? भाई एक कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करने पे आपको आपका पहले जैसा क्रिस्टल अपनी अपनी जगह पे सब मिल जाएगा, लेकिन उस 360 डिग्री को रोटेट करने के बीच में कितनी बार आपको उसको रोटेट करना पड़ रहा है जिससे क्रिस्टल अपनी जो मींस रोटेशनल सिमेट्री है उसको फॉलो कर रहा है. भाई हमने अभी एग्जांपल देखा ना, कितनी बार कर रहा है? 4 टाइम्स रोटेट करने पे कर रहा है ना. तो ये जो 4 है ना, इसको बोलते हैं द फोल्ड ऑफ रोटेशन, कि कितनी बार आप रोटेट कर रहे हो जिससे कि क्रिस्टल अपनी एक्चुअल जो उसका सिमेट्री है वो मेंटेन करे. सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? सर एक बार बोल देंगे, मेरे तक तो नेटवर्क इशू था, प्लीज. I am saying, see, I am again repeating for everyone. Okay, just listen. I am discussing here the rotational symmetry operation. Rotational symmetry operation क्या होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल पे रोटेशनल सिमेट्री को ऑपरेट करते हैं, ये एक ऑपरेशन है, उसको ऑपरेट करते हैं. ऑपरेट करने का मतलब क्या? उसको रोटेट करना. भाई ट्रांसलेशन सिमेट्री में क्या करते हैं? उसको ट्रांसलेट कर देते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. तो रोटेशनल सिमेट्री में क्या करेंगे? उसको रोटेट कर देंगे. और भाई रोटेशन तो किसी एंगल से ही होगा. ओके, सो व्हेन यू रोटेट अ क्रिस्टल बाय एट एंगल, and on that angle, if that crystal maintain their rotational symmetry maintain करने का मतलब क्या? कि वो जैसा था वैसा ही दिखे. अंदर से ऑब्वियसली लैटिस पॉइंट तो चेंज हो गया. 90 डिग्री रोटेट करोगे, जो यहां रहेगा वो यहां पे आ जाएगा, बट बाहर से क्रिस्टल कैसा दिखे? बिल्कुल सेम वैसा ही दिखे. ओके, अंडरस्टूड? यस सर. दिस इज कॉल्ड द Thank you. रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन. सो मैंने उसके बाद ये कहा, आई सेड दैट okay, when you rotate a crystal by 360 degree, then it is so obvious that crystal will maintain their rotational symmetry. But while rotating that crystal on 360 degree, how many times you have rotate that crystal so that crystal can maintain their rotational symmetry? I gave you example by the paper of square lattice. Square lattice, we have seen that we have rotated how many times? 4 times. मैंने 4 बार किया ना, 90 90 90 90. ठीक है ना? 4 टाइम्स किया. तो ये जो 4 टाइम्स है, ये क्या है? दिस इज द फोल्ड ऑफ रोटेशन. दिस इज कॉल्ड द फोल्ड ऑफ रोटेशन. प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन. Please write down the definition, everyone. If we apply rotational operation on any crystal, if we apply rotational symmetry operation on any crystal, that is crystal will rotate by angle theta. Okay. Yes, please say one by one. I think your voice is not clear. If we apply rotational symmetry operation on any crystal, then Okay, I'm repeating again. Okay, I'm repeating again. See, if we apply rotational symmetry operation on any crystal, okay, then that means crystal has been rotated by angle theta. Just write it down on your own words. Definition ही तो है, हमें इतना ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं. Definition आप अपने according भी लिख सकते हो. That if you rotate any crystal by operating a rotational symmetry and I rotate the crystal by at angle theta,
Okay, then the angle at which the crystal will maintain their symmetry, that will be the rotational symmetry operation. बात समझ में आ रही है ना भाई? सब तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं लिखाऊं, बोलूं मैं फिर से? हाँ सर, बोलिए लास्ट वाला. Okay, I am repeating again in final times. So write down. If you apply a rotational symmetry operation on any crystal, if we apply a rotational symmetry operation on any crystal, and after rotating the crystal by angle theta, if crystal maintain their symmetry, then we can say that crystal possess the rotational symmetry. The crystal possess the rotational symmetry. Understood? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर. चलो आगे देखते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं स्टार्ट करूं आगे. ओके, तो क्या हम जो हमने बात की है, जो हमने डेफिनेशन बोली है, द डेफिनेशन आई हैव टोल्ड यू, कैन आई राइट दैट डेफिनेशन इन द इक्वेशन लाइक दिस, n theta is equal to 2 pi? Can we write like that? Yes sir. What is n here? What is n Number here? of times Fold of rotation. symmetry. Fold of rotation. Fold of rotation. Or fold of rotational symmetry. You can say fold of rotational symmetry. बिल्कुल सही है. Fold of rotational symmetry. And what is theta here? What is theta here? Angle of rotation, obviously. Angle of rotation. Angle of rotation. ठीक है ना? See, if we write like this, n is equals to 2 pi by theta. You can say, sir, you can take any value of theta. Mathematically, you can take any value of theta. You can get any value of n. But whether it will be beneficial for us? Sir, Chandrayaan landed successfully on the Oh, moon. And lands. History has been created, sir. congratulations to every Indians. Congratulations to all of you. Congratulations. हाँ? क्या हो गया? Anyone saying something? He says, No, sir. Okay. "Pass बज गया." Okay. So I am saying that I can write the n is equals to 2 pi by theta. So mathematically, you can say that, sir, I can take any value of theta, and so that we can get any value of n. But I told you that you can't take any value of theta. Okay, you only can take the value of theta at which the fold of rotation must be like that, so that the crystal may maintain their rotational symmetry. Okay, understood? Yes, sir. Okay. Yes sir. And one thing I told you yesterday, that five-fold rotational symmetry does not exist. Okay. So if we can't take, sir, you can ask, sir, if you can't take the any value of n, then what should be the value of n? So I'm telling you, the value of n should be n is equals to 1, 2, 3, 4, and 6. 1, 2, 3, 4, and 6. Okay. Now we will prove this by mathematically. Okay. And from now, इस तरह हम ये देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिससे कि 5-fold rotational symmetry exist नहीं करती है. Okay. So now we are going to derive mathematically. So why the 5-fold rotational symmetry does not exist. So write down the question type here. Write down the question, why 5-fold rotational symmetry does not exist. 5-fold rotational symmetry does not exist
does not exist for crystal. Does not exist for crystal. Why? The 5-fold rotational symmetry does not exist for the crystal. I am telling you orally, just for writing down the answer, then we will go to the proof. Write down everyone, the answer of this question. Since the 5-fold rotational symmetry, violates translational symmetry operation. Violates translational symmetry operation. That is why 5-fold rotational symmetry is not possible in crystal. That is why 5-fold rotational symmetry is not possible in crystal. Understood? Proof करें? Mathematically proof करें इसको? Yes, sir. Okay. 1 second. Sorry everyone, actually मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है ना, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. Okay, so now we are going to proof. भाई ऐसा क्या हो रहा है, कैसे ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन जो है वो वायलेट कर रहा है इसको, ठीक है ना? चलो हेडिंग डालना प्रूफ. Let's suppose I have taken 4 lattice point here. I have taken this 4 lattice point here. Okay, let's suppose this is A, this is B, this is C, and this is D. Okay, A, B, C, and D. Okay, now can anyone please tell what will be the magnitude of this distance? What will be the magnitude of this distance? Small. Lattice parameter A. It is a translational vector. Yes. Lattice parameter अभी कहाँ से आ गया? Lattice parameter कोई play में नहीं है भाई. Translation vector मैंने क्या बताया था? 2 points को connect करता है ना. Okay, so the magnitude of this distance will be t. So this distance will be also t, and this distance will be also t. Okay. Now धीरे धीरे देखना. What I did, now I am rotating this lattice point A by angle theta. Okay, I have rotated this lattice point A and it reached at A dash. ये कहाँ पहुंच गया? A dash पे पहुंच गया. और इसके साथ ये B एंगल कितना बना रहा है? Let's suppose the angle is theta. किसी को कोई प्रॉब्लम? Anyone? No, sir. Good. Now, again, I am rotating this lattice point at angle theta. And this new lattice point is, suppose this is D dash. And this will make as theta. Okay. So, can I say that this distance will also be equal to how much? ND, sir. Sorry? 3T. 2T. 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 ND, sir. ND. T sin T. T plus 2T sin theta. Okay, I'm just taking a distance at t. Let's suppose. आप सब सही कह रहे हो, अभी देखते हैं आगे. Initially, the distance will also be t. Let's suppose. भाई magnitude t होगा, हम अभी देखते हैं, ठीक है ना? रुको. Okay, can I say, just any one of you saying the value of A dash D dash will be how much? Value of A dash D dash will be how much? Let's suppose, let's not write dash t. Okay, what will the value of A dash D dash? Sir, BC plus AD by 2 plus CD by 2. अरे नहीं. sir, 2T हाँ. plus T sin theta. ND, sir.
how will be sin theta come in play? Oh, sorry, sir. The resolution will be t cos theta, na? Acha, yes, sir, yes, sir. Cos theta. Okay, I'm drawing again the next diagram here. Let's see. जो हमारा next जो diagram बनेगा भाई, इसको हमने rotate कर दिया. We have rotated at by angle theta. So the new lattice point will be like that. भाई lattice point तो नहीं change हो रहा है, ठीक है ना? Reach that A dash. Let's suppose this is A, this is B, this is C, this is D. Okay, this distance was T. But now what will be this distance? Distance will be T cos theta. Okay, this distance again T, and it has been reached here at point D dash, and this angle is theta. So what will be this distance? This will be again T cos theta. सबको क्लियर है ना? ये कितना हो जाएगा? ये T cos theta और ये T cos theta और ये T as it is रहेगा. क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. Okay. So can सर I एक बार रिपीट कर दो, टी कोस थीटा कैसे आया? अरे एंगल रिजॉल्व कर लिया ना. इधर क्यों एंगल कितना आएगा? T cos theta नहीं आएगा भाई. सर एंगल ये रोटेशन समझ नहीं आई, ए टू ए डैश और डी टू डी डैश. रोटेशन कुछ नहीं हुआ है, बस इस लैटिस पॉइंट को हमने एंगल थीटा से रोटेट कर दिया है, ए डैश पे लगा दिया है और डी को पहुंचा दिया है डी डैश पे. तो मैं पूछ रहा हूं इसका ये एंगल अब कितना होगा? ये पूरी वैल्यू कितनी होगी? टी कोस थीटा होगी. इसकी भी टी कोस थीटा होगी. सिंपल है, बस इतनी मैथमेटिक्स है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं अभी. ठीक है ना? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं पहले तो ये समझ लो. वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एन. हम स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है. उसके लिए कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन लिया गया है. ठीक है ना? सो द वैल्यू ऑफ ए डैश डी डैश विल बी, what will the value of a dash d dash? 2t cos theta 2t cos theta plus Plus t. T. plus t. Very good. This is our equation number 1. Okay, can anyone will agree with me that what I told, that any crystal must have followed the translation symmetry operation, right? That means this should also follow the translation symmetry operation. So if this structure, this crystal is following translation symmetry operation, so can we write a dash d dash will be the integral multiple of BC? Can I write this? Yes. भाई अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो Yes. इसके पैरेलल ही होगा ऑब्वियसली, अगर सिमेट्री ऑपरेशन फॉलो कर रहा है, ट्रांसलेशन सिमेट्री. ठीक है ना? So what will be the value of a dash d dash from here? It will be m times t. This will be our equation number 2. Equate the equation 1 and 2 and find out the value of cos theta. Please do, everyone. What will be the value of cos theta? I am equating the value 2t cos theta plus t is -1 equals upon to t. mt. The t will be cancelled out from both sides -1 and the upon cos t. theta will be m minus 1 by 2. Is it? Yes, sir. m minus 1 by 2. सबको क्लियर है? Now tell me, m अपनी कौन कौन सी वैल्यू रख सकता है? What should be the value of m? Sir, must be 0, plus minus 1, plus minus 2, and so on. 0 Well, plus not minus any 1 plus minus 2 is Plus also minus possible. 2. No, Plus sir. minus 2, Sir, how it will be possible for plus minus 2? Minus 2 कैसे possible होगा? Cos theta should be cos. sir, between -1 to +1, it should be like that. Exactly. What will the property of cos theta? The cos theta magnitude must be less than equal to what? Oh, perfect. Minus 1 to Okay. plus 1. Okay, it must be between -1 to +1. Is it? Yes, sir. तो -1 से +1 कब रहेगा? I am writing here. आप लोग agree करना. When the value of m will be 3, 2, 1, 0 and -1. Is it? देख लो. Yes, sir. इसके अलावा कि और कोई इंटीजर है जहां पर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए? नहीं है ना? ठीक है ना भाई? आप 3 रखोगे, 3 - 1/2, 1/2 आ रहा है.
ऐसे ऐसे करके आप यही 5 वैल्यूज होंगी m की जिसपे cos थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. Okay, so now let's put the value of m. I'm rubbing this. Okay, let's सर put. व्हाट इज m सर, तो बता दीजिए. m is a integer. m is just integer, nothing else. मैंने ये कहा था कि अगर ये लैटिस, अगर ये क्रिस्टल जो है ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, then a dash d dash must be equal to the integral multiple of bc. ठीक है ना, ये इसके इंटीग्रल मल्टीपल में पैरेलल ही होंगे ना. ये जो है AD जो है वो BC के पैरेलल नहीं होगा. A dash D dash BC के पैरेलल होगा. इसीलिए मैंने इसको लिखा that A dash D dash must follow the, it should be the m is here the integer. M is integer. M should be the integer by BC. So what will the value of BC? BC is T. Okay, so that's why I write MT. And now equate both the equation. We got cos theta is m minus 1 by 2. So from the property of cos theta by value -1 से +1 के बीच में ही रख सकता है. So m की वैल्यू क्या क्या पोजेस करेगा? 3, 2, 1, 0, -1. इसके अलावा और कुछ करेगा? नहीं करेगा. रख के देखते हैं, m की वैल्यू रख के देखते हैं थीटा कितना आ रहा है. ओके सर. चलो सब लोग सॉल्व करो कॉपी में. सबसे पहले m की वैल्यू 3 रखते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 3. What will be this? Cos theta is equal to how much? 1 by 2? Sorry, 1. 1 आएगा. It is 1. cos 0. Okay, it is 1. So if cos theta is 1, then theta is equal to how much? 0 degrees or 2 pi. n pi. n pi. You can't take 0 here. Okay, 0 आप नहीं ले सकते. 0 यहाँ पर accessible नहीं होगा. Okay, so this will be the 2 pi. Okay, समझ में आ रहा है ना भाई? 0 आप कैसे ले सकते हो? एक्सप्रेशन हमारा क्या निकल के आया था? n is equal to 2 pi by theta. थीटा को आप 0 लग दोगे, इनफाइनाइट टाइम्स आप फोल्ड करते रहो उसको. It is not accessible. Okay, that's why 0 is not accessible. So what will you take the value of theta? Theta will be equal to 2 pi. Put m is equal to 2. Cos theta is equal to how much? Pi by 3. 1 sir. So 1 by 2, right? Cos theta is 1 by 2. So what will the value of theta? 5 by 3. 45? Sir, 60 degree. 60 degree होगा ना. 45 1 by 60 root degree में sir. 60 degree. pi by 3. Okay, put value of m is equal to 1. Cos theta is equal to how much? 0. Yes, sir. Yes, sir. 0. So the theta is Pi by 2. pi by 2. Pi by 2. Okay, बाकी दोनों रखो. -1 रखो जरा लास्ट में. m is equal to -1. So the cos theta is equal to how much? -1. So theta is equal to pi. Pi. ठीक है ना. अब आप लोग के मन में, किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर 1 की वैल्यू तो और भी कई हो सकती है भाई. 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई, कुछ भी हो सकती है. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ 1 by 2 इन cos थीटा अदर देन इट पॉसिबल फॉर द मींस पाई by 3 के अलावा कुछ और भी हो सकती है. ठीक है ना. पाई by 2 के अलावा और भी हो सकती है. सिमिलरली पाई के अलावा भी कुछ और हो सकती है. हाँ 2 pi by 3 भी आएगा ना सर? हाँ, जितने पे भी आएगा. सो द बेसिक आइडिया आई एम टेलिंग यू कि वो जितने आप सॉल्व करके देख लेना. ठीक है ना, आप एक दो सॉल्व करके देख लेना. वो उसको सॉल्व करने के बाद जो जो वैल्यू n की आ रही है वो सारी वैल्यूज पॉसिबल है. उतने फोल्ड का रोटेशन पॉसिबल है. मैंने 1 2 3 4 6 ये लिखा था, इसके आगे भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है ना. जैसे कि आप कहो सर 4 पाई पे ले ले, तो भाई 4 पाई पे भी तो 0 हो रहा है ना, ये सॉरी 1 हो रहा है ये. थीटा शुड बी cos थीटा शुड बी 1 at 4 पाई आल्सो. ठीक है ना, तो वो भी पॉसिबल होगा. मैं बस आपको इतनी सी बात बता रहा हूं कि 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री क्यों नहीं पॉसिबल है. व्हाई द 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो व्हाट वी गॉट वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की सारी वैल्यूज आ गई. ओके, जस्ट पुट इन ऑन द मास्टर इक्वेशन. व्हाट वाज दैट इक्वेशन? n is equal to 2 pi by theta. Yes sir. Just put the value of theta over there.
सबसे पहले 2 पाई रखते हैं. When I put the 2 pi, we got 1. When I put pi by 3, I got 6. चलो मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ वरना कि कोई कंफ्यूज हो जाएगा. For theta is equals to 2 pi. For theta is equals to pi by 3. Okay? When you will put theta is equals to pi by 2, then what will the value of n? 4. 4, sir. Okay? For theta is equals to pi by 2. And for the theta is equals to pi, what will the value 2. of n? 2. भाई 1 हो गया, 6 4 2. एक और आएगा, कुछ मिस कर दिया मैंने. सर 2 पाई/3 का एंगल नहीं दिया आपने. m equals to 0 पे 0 नहीं लिया था ना नहीं शायद. दिया है. अच्छा 0 पे नहीं लिया. ओके हाँ, ओके 2 ओके ओके. पाई/3 आ रहा है. 2 पाई बाई 3 वहां से आ जाएगा. हाँ, ओके, यस. दैट विल बी 2 पाई बाई 3. सो 2 पाई बाई 3 आप रखोगे, सो द n equal इक्वल्स to टू 3 आ रहा है. 3 आ जाएगा. वही मैं कह रहा हूँ, कुछ मिस हो गया था. फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. सो आपको क्या दिख रहा है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है n की? इतनी पॉसिबल है. ऑब्वियसली इसके सिमेट्री में और भी पॉसिबल हो सकती है, नो वरी. बट 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री नहीं पॉसिबल है. 5 fold and 7 fold, these two are not possible. Why? Because it violates the translational symmetry operation, and for every crystal it is mandatory that crystal must follow the translational symmetry operation. बात क्लियर है यहाँ तक? सर m Yes. की वैल्यू जो आप बोल रहे हो ना, हो सकते हैं मतलब 6 12 ऐसे मल्टीपल में आएंगे ना. अब आप करके एक बार आप देखना. आप 4 पाई रख के देखो. 4 पाई रख के देखो क्या आ रहा है. पाई हाफ आ रहा है ना. नहीं नहीं, हाँ. सर ऐसे तो फिर बहुत सारे होंगे 5 अरे से. हाँ, 1/2. ठीक है ना. सो नहीं देखो, इंटीजर में आने लगेगा ना, तो इंटीजर नहीं पॉसिबल हो सकता. इंटीजर कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ठीक है ना. हेलो. इंटीजर नहीं. हेलो. यस. हाँ सर, मैं कह रहा था कि ऐसे आईडी से बहुत सारे पॉसिबल होंगे. नहीं नहीं, देखो देखो, मैं बता रहा हूं. मैंने ये कहा था कि आगे चल के अगर किसी ऐसी वैल्यू पे कोई इंटीजर मिलता है तो ही वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा पॉसिबल. लेट सपोज देखो, हाँ तो वही. ठीक है ना, अगर थीटा 4 पाई कर दो ना, इफ यू टेक थीटा इक्वल टू 4 पाई, क्योंकि 4 पाई पे भी तो cos थीटा 1 बन जाएगा ना. तो इफ यू टेक थीटा इक्वल टू 4 पाई, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? इट विल बी 1/2. 1/2 कैसे पॉसिबल है? हाफ, आधे बार कैसे रोटेट करोगे इसी को? ठीक है ना. ठीक है ना. सो आप इस तरह से करके देख लेना. ठीक है, आप यही देखोगे ना, सीधे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 6, यही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं. ठीक है ना, यही पॉसिबल, क्योंकि इसके आगे ना सारा n की वैल्यू इंटीजर बनना शुरू हो जाता है. जो कि भाई फोल्ड आप इंटीजर में फोल्ड थोड़ी कर सकते हो भाई. एक बार घुमाओगे या 2 बार घुमाओगे, आधे बार थोड़ी घुमाया जाता है ना. बात क्लियर है? सर यस सर. यस. सर मुझे एक डाउट है. हाँ हाँ बिल्कुल पूछो. सर जब आपने स्क्वायर का करके दिखाया था n इक्वल टू 1, मतलब 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड, सर उसमें 5 फोल्ड पॉसिबल, मतलब 4 फोल्ड के बाद आप फिर से 90 डिग्री घुमा दो तो वो 5 फोल्ड नहीं कहलाएगा? या फिर 360 के बाद फिर हम सिर्फ उतना ही कंप्लीट कर देते हैं? रिपीट नहीं करना है बेटा, आप समझ नहीं रहे हो. Okay. रिपीट नहीं करना, स्केलिंग नहीं करनी है. ठीक है ना, स्केलिंग नहीं करनी है. ये देखना Okay. है कि एक बार घुमाना जब आपने शुरू किया, वो कितने एंगल पे अपने जगह पहुंचेगा. ऑब्वियसली पूरा, जैसे अगर स्क्वायर लैटिस की बात करें, फिर टॉक अबाउट स्क्वायर लैटिस 360 पे पहुंच जाएगा. तो बस आपको ये देखना है कि 360 पहुंचने मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन के बीच में कितनी बार वो रोटेट हो रहा है, ये देखना है. दोबारा नहीं घुमाना है उसको. यू कांट रोटेट अगेन. बात समझ में आ रही है ना? ओके. 6 के लिए भी तो घुमाया ना सर. Okay. 6. ओके सर, हाँ थैंक यू. सर 5 6 के फोल्ड लिए भी तो मतलब घुमाया. कितना एंगल से घुमा रहे हैं हम एक्चुअली, मतलब अरे आप ये देख लो ना, n की वैल्यू 5 रख के देख लो, पता चल जाएगा कितना एंगल है. थीटा इज टू 2 पाई बाई 5, कितना एंगल होगा इसका भाई? 360/5 कितना आएगा? 142 डिग्री. हाँ 144. 144. 144. अरे यार सर 72 72 डिग्री 41 72 डिग्री. ठीक है ना. सो इससे आप ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हो दैट यू कांट रोटेट एनी क्रिस्टल ऑन 72 डिग्री. राइट? क्लियर है? यस सर. यस सर. यस. क्लियर है कि कोई क्वेश्चन है?
Good. चलो, the next heading is reflection symmetry. ठीक है ना? So rotational symmetry हमने देखा. We have solved everything about rotational symmetry and also find out why 5-fold rotational symmetry is not possible. Write down the heading reflection symmetry. Reflection symmetry. Reflection symmetry. See, in the reflection symmetry and last one is inversion symmetry. इसमें कुछ proof करने जैसा नहीं है, सिर्फ दो लाइन की theory है जो हमें समझनी है, ठीक है ना? Will anyone tell what is the reflection symmetry? Sir, is reflection symmetry that divides it into identical halves, each having mirror image. Mirror image. Very good. Very good. Very good. Let's suppose I have this a two-dimension structure. Let's suppose this is a two-dimension structure. Okay. Suppose this is something like that. मैं एक example ले रहा हूँ, just example. Okay. And if you see the reflection about this line, ये टू डायमेंशन में फिर से कह रहा हूँ, दिस इज टू डायमेंशन स्ट्रक्चर, कोई 3D स्फेयर नहीं बनाया है, ठीक है ना? सो इस लाइन के अराउंड आप देखो, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? इज दिस अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? Yes, sir. सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन सिमेट्री. एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बन जाए, मेरा मिरर इमेज बन जाए. मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको. लेट्स सपोज दिस इज स्क्वायर. ओके, इसका कोई बताएगा कैसे बनेगा? कौन सा लाइन बनेगा इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री के लिए? एक तो ये बन जाएगा, बस के बाद, ठीक है ना? और एक ये बन सकता है, ये एच से पास हो रहा है, ठीक है ना? इसको देख लेना, ये एच से पास हो रहा है, ठीक है ना? सिमिलरली एक ये ऐसे ही बन सकता है, ठीक है? क्लियर है? सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन सिमेट्री. तो ये हमने बात की टू डायमेंशन की. थ्री डायमेंशन में भी ये पॉसिबल है, ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन द थ्री डायमेंशन का एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज यस, जो हम अभी आपने जैसे रब किया वो स्क्वायर लैटिस लिया था ना आपने? अरे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जो भी हो. हाँ बताओ. अरे स्क्वायर तो क्या हम उसे हॉरिजॉन्टली कट मतलब नहीं देख सकते, रिफ्लेक्शन देख सकते? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. ओके, हॉरिजॉन्टली मिलेगा, वर्टिकली मिलेगा, डायगोनली मिलेगा. ओके, सी कोई भी लैटिस लो, कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ लो, लेट्स सर्च आउट फॉर दैट पॉइंट जहां पर एक लाइन खींचने से दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं. अगर ऐसा हो रहा है, अगर एक भी लाइन ऐसा मिल गया, इफ एनी सिंगल लाइन यू कैन गेट, देन दैट crystal will follow the reflection symmetry. Understood? Yes, sir, clear. Okay, now I'm taking the example of three dimension. Just write, means just draw the cube here on your copy. I'm taking example of three dimension. I'm making a cube here. Okay, I'm making a cube here. अच्छा, कोई बताएगा इसमें क्या मिल सकता है हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री या नहीं? Can I get a reflection symmetry here? मिलेगा सर. मिलेगा भाई. यहाँ से एक ये ऐसे करके डाल दो प्लेन. बट ऑलवेज रिमेंबर, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो. ऑलवेज रिमेंबर, टू डायमेंशन में हमें किसके अलोंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिल रहा था? लाइन के अलोंग मिल रहा था ना. बट इन थ्री डायमेंशन इट शुड बी अ प्लेन. ओके, क्योंकि इस प्लेन के अराउंड हमें क्या मिलेगा? एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिलेगा, ठीक है ना? ऐसे ऐसे और भी हो सकता है, ऐसे एक और हो सकता है, ठीक है ना? ये लेट्स सपोज मैं इस पे बना दूं, आप लोग अलग बना लेना. चलो मैं दूसरा ही बना देता हूं. लेट्स सपोज इसके अलोंग भी मिल सकता है हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री. कैसे? ये जो प्लेन होगा ना हमारा, इस प्लेन के अलोंग भी हमें पूरा का पूरा जो सिंपल क्यूबिक लैटिस मतलब क्यूबिक लैटिस है वो एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा. ओके, अबाउट दिस प्लेन आल्सो द क्यूबिक लैटिस विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दैट वी कैन से दैट दिस क्रिस्टल इज फॉलोइंग द रिफ्लेक्शन सिमेट्री. अंडरस्टूड?
Any doubt? Any doubt, anyone? No, sir. Okay. No, sir. So the last one is inversion. बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, just a theoretical concept. Last one is inversion symmetry. Write down the topic inversion symmetry. Inversion symmetry. The fourth one is inversion symmetry. Anyone knows about this? Inversion symmetry operation. Anyone know about this? It's just like some Inversion of sign. Inversion of sign. It is applicable Space. only to Inversion theta. of space. Please, one by please one by कोई one. एक पॉइंट के कोई एक पॉइंट से अगर दूसरे उसको इन्वर्स कर दे तो उस सेम उसके ही जैसा दिखे, जस्ट लाइक ए पॉइंट इन्वर्स बोल सकते हैं इसको. किसी ने अपनी बात शुरू की थी, दिस इज ओनली वैलिड फॉर, ऐसे करके कोई किसने शुरू किया था? मुझे सुनाई दिया था. 3D. Exactly. It is applicable for 3D. इन्वर्जन सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, इस पे डिबेट ऐसे नहीं कुछ किया जा सकता कि ऐसा क्यों है. ये इसकी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है दैट द इन्वर्जन सिमेट्री इज ओनली वैलिड फॉर द 3D क्रिस्टल. ठीक है ना, ये 2 डायमेंशन में नहीं पाया जाएगा. दिस इज ओनली वैलिड फॉर द 3D क्रिस्टल. सबसे पहली बात ये. एंड ये होती क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. एक क्यूब को फिर से ड्रॉ करो. एक्चुअली यहाँ पर एक क्यूब नहीं ना, एक्चुअली यहाँ पर ना 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी. आई एम ड्राइंग द 4 क्यूब्स. ओके, तभी आपको ये चीज समझ आएगी. दिस इज 1 क्यूब. ओके, this is another cube. Okay, and now again just make it like that. Okay, so this is our, मैंने क्या किया है, 4 क्यूब्स को बना दिया है. 1 2 3 4. क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. ओके, अब देखना यहाँ पर क्या कर रहे हैं. किसी एक पॉइंट को चूज करो, इस पॉइंट को चूज कर लो. ठीक है ना, मैं आपको ये बता रहा हूं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन इन्वर्जन सिमेट्री. ओके, इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अलोंग आप इस वाला पॉइंट को देखो, दिस पॉइंट. जैसा पॉइंट ये है, बिल्कुल वैसा ही पॉइंट ये है. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? देखो 2D पे बना है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना. ठीक है, बेसिकली द मेन फंडा इज, आई एम आल्सो ओरली टेलिंग यू, आप किसी पॉइंट को चूज करते हो ना, उसके सामने की तरफ जैसा लैटिस है, जैसा माहौल है, सारी चीजें जैसी हैं, उसके पीछे की तरफ भी बिल्कुल वैसा ही हो. इन्वर्जन मतलब क्या? इन्वर्ट होना, वहीं से ही आया है. मीन्स फ्रंट साइड पे जैसा हो, बिल्कुल वैसा ही कैसा हो, इस साइड, पीछे की साइड हो. इस साइड जैसा हो, बिल्कुल वैसा ही किस साइड हो, इस साइड हो. इस साइड हो क्या मतलब, सारे आइडेंटिकल हो. ठीक है ना, इस पॉइंट से सामने की तरफ, जैसे मैंने इसको रेफरेंस माना और यहां पर देखा, तो जैसा ये होगा वैसा ही ये पॉइंट होगा. ठीक है ना, तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह का ऑपरेशन कोई भी क्रिस्टल पोजेस कर रहा है, सो व्हाट वी कैन से दैट दिस क्रिस्टल इज पोजेसिंग द इन्वर्जन सिमेट्री. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन. अंडरस्टूड? किसी कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं है, सिंपल सी है, बस थ्योरेटिकल नॉलेज है ये. ओके, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए. So the symmetry operation has been over. Now we are going to discuss the Bravais lattice. किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए? आज हमारी 2 क्लास है.
ब्रेवे लैटिस, इसको एक्चुअली आप ब्रेवे बोलते हैं, नहीं ब्रेवे एस साइलेंट होता है इसमें, एस इज साइलेंट हियर, इट इज कॉल्ड द ब्रेवे लैटिस. सो कैन एनीवन टेल व्हाट इज द ब्रेवे लैटिस? Said the lattices that exist in nature and Sorry? said the lattices that exist in nature and follow the symmetry operations, at least one of them that we have mentioned previously. Very good. Very good. Very good. बिल्कुल सही definition है. The exactly true definition he has said. The lattice exists in nature and follow the at least one symmetry operation. Okay, एक तो ये definition हो गई Bravais lattice की, and the other definition is in a Bravais lattice every lattice point should be identical. Okay, these two are the main definition of Bravais lattice. ध्यान से समझना, Bravais lattice के अंदर ही हम different lattice को पढ़ने वाले हैं. In the Bravais lattice, we are going to discuss different type of lattice in the 2-dimension and in the 3-dimension. Please write down the definition. Please write down the definition. A lattice in which every lattice point has identical surrounding is called Bravais lattice. Okay, example मैं आपको देता हूं. देखो, इसका तो एग्जांपल हमने डिस्कस कर ही लिया है ना, स्क्वायर लैटिस, वो ब्रेवे लैटिस ही है. चलो देख लेते हैं फिर से. ठीक है ना? सर लास्ट लाइन बोलना, लैटिस इन व्हिच, कहां पर छूटा है? सराउंडिंग के बाद छूटा है क्या आपका? Identical surroundings. Lattice in which every lattice point has an identical surrounding. It's called Bravais lattice. It's called Bravais lattice. ठीक है ना? Okay. I'm taking a square lattice here and suppose if all the lattice point has identical. ठीक है ना? सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था ना, वो इसका एग्जांपल ही है. बेसिकली हम इतने दिन से क्या डिस्कस करते आ रहे हैं? Bravais lattice ही डिस्कस करते आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज अ Bravais lattice बिकॉज एवरी लैटिस पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग. ये कैसे देख रहे हो भाई? हम यहाँ पर हैं, आई एम एट दिस पॉइंट. इफ यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस, these four are at same distance. This and this, these four are at same distance. ठीक है ना? इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल सराउंडिंग होना. ठीक है ना? सो दिस टाइप ऑफ लैटिस इज कॉल्ड द Bravais lattice. तो इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ये होता कैसे है वो अभी देखेंगे. दिस इज कॉल्ड द Bravais lattice. चलो सर, आपने बता तो दिया कि Bravais lattice का एग्जांपल. कोई एक ऐसी लैटिस बता दो जो Bravais lattice नहीं होती है. जस्ट टेल मी द वन लैटिस व्हिच इज नॉट Bravais lattice. कैन एनीवन टेल दैट? Any lattice which is not Bravais lattice? Can anyone tell? Example of non-Bravais lattice. है किसी के दिमाग में? नहीं है? चलो ठीक है. हेक्सागन लैटिस के बारे में सुना है? Have you heard about hexagon lattice? I'm not talking about hexagonal. ध्यान से सुनना. 2D structures में No. It's a two different things. Hexagon lattice. Hexagon lattice basically a honeycomb structure. Have you heard about honeycomb structure? honeycomb सुना है. Yes sir. Okay, देखो ये ऐसे बनता है, मैं बना रहा हूं. Naveen is there? Yes sir. Are you feeling comfortable today? Yes sir. Yes, sir. No pro सही है ना? Everything is good ना? Yes sir. There is no problem regarding language, right? Yes sir. Okay, many of Naveen has the problem that sir, you are delivering lecture too much in Hindi. So I said okay, if it is so then I will take care of that. Okay, ऐसा होता है क्या? मैं ज्यादा हिंदी में यूज कर देता हूँ. चलो कोई नहीं, बराबर. फील आ जाता है ना अपनी लैंग्वेज में. Exactly, यही बात है. कोई नहीं, but see, Happens, sir. this is the main Always happens. main things of our country, that it has diversity. Okay, so the people which are in this meeting are from different part of India. So everyone has their own language. So the language should be like that. Everyone should be comfortable in that language. So Naveen, no worry, bro. Okay, I will follow the 50-50 portion.
Okay, so what I'm making here, I'm making the hexagon lattice. Hexagon, not hexagonal. Difference है, बताऊंगा. Okay, so let's make it. बनाना, सब लोग बनाना अपनी अपनी कॉपी में. Please make everyone. और कैसे बनेगा ये? इसको इधर बना लो. Okay, now what could be done? How will it be make like this? It can be like this. कुछ गड़बड़ हो रहा है. इसको इसके ऊपर बना लेते हैं. Sir, straight line. कोई नहीं, कोई नहीं. Have one straight line, sir. यहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है ना? It's a straight line. No worry, no worry, no worry, no worry, no worry. अब बन गया? ठीक है ना? कोई नहीं, हो जाती है गलतियां. ठीक है ना? बस इतना बहुत है मेरे समझने के लिए. So what is this? This is our honeycomb structure. ठीक है ना? This is our honeycomb structure. ऐसे ही होता है ना? ठीक है ना? अब देखना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं. Why this is not Bravais lattice? कोई बता सकता है ये Bravais lattice क्यों नहीं है? ये Bravais lattice क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? आइडेंटिकल सराउंडिंग नहीं है. अगर बिल्कुल, हमने exactly. It does not have identical surrounding. Why? See, हर एक पॉइंट ये सारी चीज, ये जो ये सब है ना, जहां जहां ज्वाइंट हो रहा है, ये सब क्या है? लैटिस पॉइंट है. दिस ऑल आर द लैटिस पॉइंट्स. ओके, सो दिस इज अ लैटिस पॉइंट. This is a lattice point. If this is a lattice point, this is also a lattice point. Please tell me whether these two lattice point has identical surrounding. Is it? No, sir. ऐसा है? No, sir. अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ. Whether these two lattice point have identical surrounding? No, sir. No. इसके ऊपर एक लैटिस पॉइंट बन रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं बन रहा है. ठीक है ना? और इससे होता हुआ यहाँ पे इस साइड पे बन रहा है. मतलब बेसिकली आइडेंटिकल नहीं है. These both are not identical. Although it is a unit cell, it is a unit cell, because while repetition of this structure we are getting the complete lattice, we are getting the complete two-dimensional lattice space. ठीक है ना? ये unit cell तो है, but is not a Bravais lattice. Understood? समझ में आ रही है? Okay, so this is the example of non-Bravais lattice. ठीक है. So अब बात आती है कि अब इसका use कहाँ है? Where is the use of this Bravais lattice and all? सर ये प्रिमिटिव होगा. ये प्रिमिटिव होगा जब ये ब्रेवे लैटिस ही नहीं है. ठीक है ना? आप निकाल के देखो क्या आ रहा है. 6 आ रहा है क्या इसका इनइफेक्टिव? इनइफेक्टिव 6 आ रहा है क्या? तो नहीं रहा है. टू डायमेंशन स्ट्रक्चर है. दिस इज अ टू डायमेंशन स्ट्रक्चर. कहां से आ रहा है? इसका ये पॉइंट जो है ना, वन लैटिस पॉइंट शेयर बाय हाउ मेनी सेल? 3 ना. 3. 3. And how many lattice point in a unit cell? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 multiplied by 1 by 3. 2. Not a primitive. Non-primitive. ठीक है ना? मैंने क्या बताया प्रिमिटिव निकालने का? इनइफेक्टिव निकाल लो, वहां से क्लियर हो जाएगा. ओके? यस सर, क्लियर. Non-primitive. So write down the heading. 2 dimension. सबसे पहले हम बात करेंगे 2 dimension की. We'll talk about the 2 dimension. So we'll talk about the 2 dimension. How many Bravais lattice are possible in 2 dimension? 5. 5. 5 Bravais lattice. And how many crystal structure are possible? 7 crystals. 7. No, it's for 2D. 7 3D में होता है. How many crystal structure are possible in 2 dimension? Bravais lattice तो 5 होंगे. 4. Okay, 4 crystal structure will be in 4 crystal structure will be in 4 crystal structure and 5 Bravais lattice. कैसे हो रहा है देखते हैं. Okay, so
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर 3 लैटिस पैरामीटर यूज करूंगा. आई विल यूज द 3 लैटिस पैरामीटर हियर. A, since this is a 2D, so the A and B will be the distance, and the between these two lattice parameter the angle alpha. I will use these 3 lattice parameter here. ठीक है ना. 3D में भी देखते हैं और क्या होता है. So let's see one by one. First of all, which crystal structure is possible? Square lattice. Square lattice. See, everyone must make a chart on your copy for 2D and 3D. What will be in the chart? First of all, I am telling you. Okay, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ आपको चार्ट कैसे बनाना है. हेडिंग डालना 2D. It will be a crystal structure. Okay, crystal structure एक कॉलम में. In other column, it's you can say that relation between A, B and alpha. 2 dimension में बस यही 2 कॉलम बनेंगे. ठीक है ना. A, B and alpha. Yes, you can say the characteristic between the lattice parameters. Okay, so we are talking about the what? Square lattice. Square lattice. What is the property of square lattice? A equal B and alpha is 90 degree. 90 degree. बनेगा कैसे ये कुछ ऐसे बनेगा. This will make like this something. ठीक है ना. Okay, ये कुछ ऐसे बनेगा. Okay, this is A and this is B and this is angle is 90 degree. हमने पूरा कर दिया. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? स्क्वायर लैटिस ही तो है ना ये. दिस इज स्क्वायर लैटिस. ठीक है. यस सर. व्हाट इज द सेकंड वन? रेक्टेंगुलर लैटिस. ओके. रेक्टेंगुलर लैटिस. ओके. What is the property of rectangular lattice? A not equal to B and alpha equals to 90 degree. A not equal to B, alpha is 90 degree. 90 degree. अच्छा, बस यहीं पे सारी कहानी है. There is a 2 type of rectangular lattice. There is a 2 type of rectangular lattice. Okay, one is what? देखो उसको 2 तरह से बोलते हैं. One is primitive rectangular, other one is non-primitive rectangular or centered rectangular. ठीक है ना. There is a 2 type of rectangular lattice. First one is primitive rectangular. इस पे हमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. Primitive rectangular basically the common rectangular lattice जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है ना. Primitive rectangular lattice and other one is centered or non-primitive. ऐसे ही समझ लो. ठीक है. Other one is non-primitive rectangular lattice. ठीक है ना. सो यहीं से मतलब रेक्टेंगुलर लैटिस इज द मेन थिंग which has for the reason by which there is a 5 Bravais lattice. See, we have 4 crystal structure. One is square, other one is rectangular, third is hexagonal and fourth is oblique. तो अगर 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो 4 Bravais lattice होने चाहिए थे. बट उसमें जो हमारा रेक्टेंगुलर लैटिस है ना, तो रेक्टेंगुलर लैटिस है 2 parts. Okay, not more than that. What is the third one? इसका स्ट्रक्चर पता है ना कैसा बनेगा? A is not equal to B, कुछ ऐसा. Let's suppose this is A and this is B, something like that. Both side will not equal, right? ऐसे करके हमारा एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा. What is the third one? Hexagonal lattice. हेक्सागन के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे. हेक्सागोनल क्लोज पे एग्जाम में बताऊंगा ना, पूरी डिटेल में बात करेंगे. अभी के लिए बस इतना जानते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ Bravais lattice in 2 dimension is hexagonal lattice. Anyone? Sir, Yes. can you repeat non-primitive rectangular lattice? Non-primitive rectangular lattice. See, there's a 2 types of means you can say the primitive and other one is centered primitive. Okay, centered rectangular. See, I'm making the centered rectangular. How it will be? See, let's suppose
This distance is A. This distance is B. Okay. भाई रेक्टेंगुलर लैटिस है तो इसके सारे चारों कॉर्नर्स पे एक एक पॉइंट्स होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे, ठीक है ना? All corner will have a lattice point. Okay. So what is this? This is our first one, rectangular lattice or primitive rectangular lattice. Why we calling this as a primitive rectangular lattice? Because it has number of effective atomic or effective number of lattice point is 1. Koi problem? Any problem? No, sir. And the second type is, I said, non-primitive or centered rectangular. What does that mean? That means just put one center lattice point here. Now, what will the n effective? 2. 2. That's why it is called a non-primitive. Okay, sir. Thank Understood? you. Okay. So, what we are talking about, hexagonal lattice. What is the proper? हाँ. यह आइडेंटिकल ही होगा रेक्टेंगल, ए बड़ा बी छोटा है तो मतलब इसका देखा था ना हमने हनीकॉम का, वैसे यहाँ नहीं होगा कुछ इशू? नहीं, कैसे होगा? रुको, चलो बनाते हैं, डाउट क्लियर करते हैं आपका। क्योंकि यहाँ एक छोटा एक बड़ा ऐसा है। अरे नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज। भाई रेक्टेंगुलर लैटिस जो है ना, सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल ही होंगे, डोंट वरी एट ऑल। अरे इसको तो हमने प्रिमिटिव में यूज किया था, याद करो ना, बनाते टाइम यूज नहीं किया था इसको हमने प्रिमिटिव में, ठीक है ना? ठीक है ना? सो क्या प्रॉब्लम आ रही है? सारे पॉइंट आइडेंटिकल ही तो हैं। यस सर, सारे पॉइंट तो आइडेंटिकल है, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? ठीक है yes, ना? sir. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागोनल लैटिस? C is equals to 120 degree. And alpha is how much? So 120 120 degree. 120 degree. Alpha will be 120 degree. ये कुछ ऐसा बनेगा. This is A. This is B. See, these both length are equal. Okay, समझ आना आप लोग. These both length are equal, and this angle is 120 degree. हम अभी, I'm not going the D for the hexagonal lattice. We will completely see the, especially 1 or 2 lecture will be dedicated to the hexagonal lattice. Don't worry. Okay. So Sir? this is the yes. सर जैसे हमने नॉन प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस बना दिया, उसके बीच में लैटिस पॉइंट देके, तो सर वैसे हम स्क्वायर लैटिस में भी तो कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव एक और टाइप हो जाएगा उसका। बट वो ब्राविस नहीं बन रहा है ना, हम ब्रावे लैटिस की बात कर रहे हैं। हमें देखो, फिर आप लोग प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव से बाहर आ जाओ, तो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी टॉपिक है, ठीक है ना? आप लोग उससे बाहर आ जाओ, आगे की सॉलिड स्टेट पढ़ो। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रावे लैटिस। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की तो बात ही नहीं हो रही है ना अभी तो, ठीक है ना? जो सेंटर्ड स्क्वायर की आप बात कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर्ड स्क्वायर लैटिस। दिस इज नॉट अ ब्रावे लैटिस। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रावे लैटिस? आइडेंटिकल होनी चाहिए आइडेंटिकल सराउंडिंग। अब आप जरा मुझे बताओ, टेल मी दैट क्या आइडेंटिकल सराउंडिंग होगा सारा स्क्वायर में? सर आई थिंक सो। नहीं, सेंटर्ड स्क्वायर में। हाँ, आई थिंक सो होगा। नहीं, दिस इज नॉट अ Yes, ब्रावे sir. लैटिस। ओके, दिस इज नॉट अ ब्रावे लैटिस। दिस इज नॉट अंडर द कंडीशन ऑफ ब्रावे लैटिस। उसको सेटिस्फाई ये नहीं करता है, ठीक है ना? दिस आर नॉट अ ब्रावे लैटिस। दिस इज ओनली 4 क्रिस्टल एंड 5 टाइप्स ऑफ ब्रावे लैटिस इज देयर। ओके, और या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हो दैट अ सेंटर्ड, यू कैन से सेंट, बट वो नॉन प्रिमिटिव में चला जाएगा। ओके, वो नॉन प्रिमिटिव में चला जाएगा। सेंटर्ड स्क्वायर भी कम इन द नॉन प्रिमिटिव। ओके, क्या आप एक बार ही बना के दिखा सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू विजुअलाइज इट। व्हिच वन? सेंटर्ड स्क्वायर। सेंटर्ड स्क्वायर? यस सर। ओके, व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर्ड स्क्वायर लैटिस? और क्या होता है इस पे? सेंटर पर आ जाएगा बस। यस सर। बस, और क्या? बट सर ये तो आइडेंटिकल। सर इसका आइडेंटिकल ना सर, क्यूबिक वाला
लेटिस बना देगा और एन इफेक्टिव जो आएगा वो 2 आएगा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। यार देखो, मेरी बात समझो, हम सिर्फ 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बेसिकली अ पार्ट ऑफ 3 डायमेंशन लैटिस। 3 डायमेंशन लैटिस में हम 2 डायमेंशन को लेके हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको ऐसा दिखेगा। सी सॉलिड स्टेट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो कि एक्चुअल में नहीं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। सो जैसा कि आपने, किसी ने भी कुछ कहा था, व्हाट वाज द स्टेटमेंट, प्लीज आप ही बोलो। सिंपल क्यूबिक लैटिस को लेके जो आपने कहा था। सर मतलब अगर हम इसके बॉडी के को लेके, बॉडी सेंटर को लेके क्यूब बना दें, तो उसके अंदर एन इफेक्टिव जो आएगा वो 2 आएगा, तो ये नॉन परमिटिव की तरह ही बिहेव करेगा। एग्जैक्टली बट सिमिलरली देन वी हैव सर नॉन प्रिमिटिव तो मैं जानती हूँ कि होगा, बट नॉन प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस हमने अलग से मेंशन करा है, बट वी हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि नॉन प्रिमिटिव स्क्वायर लैटिस भी ब्रेवे लैटिस का एक पार्ट होगा। basically the property of Bravais lattice which has, see, we only know the property that it has been identical. ओके, बट हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो लाइक ट्रांसलेशन सिमेट्री, हो सकता है कोई ऐसी सिमेट्री ऑपरेशन हो जो सेंटर्ड स्क्वायर लैटिस ना फॉलो कर रहा हो। सी बहुत सारे जो हमने सिमेट्री ऑपरेशंस की बात की है ना, वी हैव टॉक अबाउट द सिमेट्री ऑपरेशन दैट आल्सो मस्ट फॉलो ऑन दिस लैटिसेस। ओके, ब्रेवे लैटिस का सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ आइडेंटिकल सराउंडिंग हो। अभी आपके ही किसी फ्रेंड ने स्टार्टिंग में ही ये चीज बोली थी ना कि दैट लैटिस आल्सो मस्ट फॉलो द ऑल टाइप ऑफ एटलीस्ट वन टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। हो सकता है कि ये जो लैटिस की आप बात कर रहे हो, स्क्वायर लैटिस की आप बात कर रहे हो, सेंटर्ड स्क्वायर लैटिस की आप बात कर रहे हो, मे बी इट नॉट फॉलो द एनी मींस यू कैन से लैटिस सिमेट्री ऑपरेशन मे बी, ठीक है ना। सो दैट्स अ मेन रीजन। डोंट डोंट सी, मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या करना है सुनो। अभी तक जो क्वेश्चन आया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आया है कि हाउ मैनी ब्रेवे लैटिस आर पॉसिबल इन 2 डायमेंशन। वो भी किस एग्जाम में आया पता है? जेस्ट के एग्जाम में आया है, ठीक है ना। सी इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है ना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा वहां पे, ठीक है ना। सो थोड़ा सा ना क्लास ओरिएंटेड होके चलते हैं। डाउट आप पूछ रहे हो, बिल्कुल सही चीज है, बट जस्ट टेक द थिंग एज इट इज, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बट मैंने कहा ना, कुछ हो सकता है ऐसा सिमेट्रिक ऑपरेशन हो जो ना फॉलो कर रहा हो लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। सी बहुत सारी बुक्स में अगर आप देखोगे ना, तो 2 डायमेंशनल ब्रेवे लैटिस का कॉन्सेप्ट ना सिंपल ऐसे ही होता है। एक तरफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ उसका लैटिस पैरामीटर्स का रिलेशन, दैट्स इट। बेसिकली आपको इतनी सी बात बता रहा है कि 2 डायमेंशन में, बात समझना, 2 डायमेंशन में सिर्फ ये 4 तरीके के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल है। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन 2 डायमेंशन, दैट्स ऑल, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वो 3 डायमेंशन की बात करता है कि इन 3 डायमेंशन, सॉरी रियल वर्ल्ड में तो होगा ही। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? ही इज टॉकिंग टू होगा ही नो। यस यस, तेरा सर पूरी होगा ही ना सर, 2D होगा ही होगा। उसका एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर, 3D होगा ना। योर वॉइस इज नॉट क्लियर एक्चुअली। रियल वर्ल्ड में सब 3D होगा। नहीं नहीं, मैं अभी 2D की ही बात कर रहा हूँ, 3D भी अभी आ रहा हूँ, 3D पे आ रहा हूँ अभी। ओके, 3D पे आ रहे हैं अभी। सो व्हाट इज द लास्ट वन? What is the last one? Oblique. Okay, the oblique lattice. What is the property of oblique lattice? So here A is not equal to B and alpha is not equal to 90 degree. A is not equal to B and alpha is not equal to 90 degree. This is the main property of oblique lattice. So basically these 4 types of crystal is possible in 2 dimension, which we said that okay, this is the Bravais lattice. ठीक है ना, बात क्लियर है? Yes sir. Okay, can we move to the 3 dimension? Yes sir. Okay. Yes sir. Always everyone should remember that ये जो 3 डायमेंशन का मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं ना, वो सब लोग अपने दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है ना।
क्योंकि last time I have sent you a question of JAM 2021. Someone has solved that back it to me. Okay. जिसने solve कर Puneet, I guess he has solved and sent the back. Okay, I'm making a chart here for the 3-dimensional lattice. I advise you all the guys, whether it is from JAM or from NET, everyone must learn. आपने BSc में पढ़ा भी होगा इसको, ठीक है ना, आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में इसको पढ़ा भी होगा, बट इसको आप ऑब्वियसली समझना जरूरी है. इसमें जो चार्ट में बनाओगे उसमें समझने जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, ठीक है ना, बट वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना. लैटिस पैरामीटर का रिलेशन कैसे है, हाउ द लैटिस पैरामीटर आर रिलेटेड टू ईच अदर, right? How the interfacial angle are related to each other. You should remember this because देखो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जाओ. पहले जैसे टेट्रागोनल लैटिस, आप पूरे टेट्रागोनल लैटिस बनाओ, फिर समझो अरे एंगल क्या है. नो, ये सब आप करोगे ना तो आपको 10-15 मिनट चला जाएगा. यू कांट अफोर्ड दैट. सो मैनी थिंग नॉट इन सॉलिड स्टेट, every other topic also, many things are there which you have to memorize. Okay, so be attentive for that. Sorry. Okay, what we are talking about, the 3-dimensional lattice. Okay, just make a column here. आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. Okay. 3D Bravais lattice. Actually, this only is Bravais lattice. इस 3D Bravais लैटिस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. कितने तरह के होते हैं स्ट्रक्चर, उसके Bravais लैटिस अंदर कितने कितने होते हैं, एंड उसमें से हम कुछ among all of them we will study few lattice structure thoroughly, like simple cubic, body centered cubic, face centered cubic, and hexagonal lattice, and 3 other also there, actually 2 other also there, like NaCl and diamond cubic. So total 6 number of lattice we have to study thoroughly, means completely everything. Okay, so I'm making a chart here and then I will fill one by one. The first column will take as crystal. Okay, I will name the crystal here, or crystal structure you can write. The other will be Bravais lattice. Bravais lattice. The third will be orientation. Orientation. Okay. Okay. And the fourth column will be volume. मैं इसको अभी बाद में करा दूंगा, ठीक है ना. अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले ना, बिफोर डिस्कसिंग दिस, आई वांट टू राइट सम डिस्क्लेमर हियर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीजें. सी, आई एम गोइंग टू यूज हियर 3 lattice parameter because this is a 3-dimension structure. अभी तक हम 2D की बात कर रहे थे, तो 2D में हमारा 2 lattice parameter बन रहा था, one along x-axis, one along y-axis, but this is a 3-dimension, so the third lattice parameter will also come in picture, that is for the third, that is C. Okay, इसमें मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. So we will discuss 3 types of lattice parameter here, A, B and C. 3 lattice parameter will be there, and there will be 3 angle also. भाई 3 कोऑर्डिनेट है ना, मतलब 3 एक्सिस है ना, तो 2 एक्सिस आपस में मिलके एक एंगल बनाएंगे, राइट, लाइक A एंड B मिलकर एक एंगल बनाएंगे. A और B के बीच क्या एंगल होगा? वन एंगल will be between A and B, the other angle will be between B and C, and the other angle will be between C and A. Anyone has confusion? भाई 3 लैटिस पैरामीटर है ना, तो सब मिलके एक एक एंगल बनाएंगे. ए और बी के बीच का कुछ एंगल होगा, बी और सी के बीच का कुछ और एंगल होगा, सी और ए के बीच का कुछ और एंगल होगा. ओके, सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय गामा. ओके, द एंगल बिटवीन बी एंड सी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड द एंगल बिटवीन सी एंड ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा. इसको अगर आपको याद देखना है तो आप ये कह सकते हो
ए बी सी के करस्पॉन्डिंग अगर आप अल्फा बीटा गामा को चूज कर रहे हो तो जहां पर ए बी है यहाँ पे यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा है तो उसके साथ में गामा आ गया। मतलब ये तरीका है देखने का। द एंगल बिटवीन ए बी विल बी गामा, द एंगल बिटवीन बी एंड सी विल बी, आई विल बी टेकिंग अल्फा, एंड द एंगल बिटवीन सी एंड ए विल बी बीटा। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन करें सर ऐसे ही क्यों लिया, हम कुछ और नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। रीजन ये है दैट इंटरनेशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस इज द स्पेसिफिकली मींस यू कैन से द ओरिएंटेशन वी आर टेकिंग। ठीक है ना, इसको फिक्स कर दिया गया है कि हम ऐसे ही लेंगे इसको। ओके, दिस इज अ फिक्स। हर एक बुक इसी चीज को फॉलो कर रही है। सो इंटरनेशनली अप्रूव है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है दैट ओके, इफ the angle between A and B will be gamma, the angle between B and C will be alpha, and the angle between C and A will be beta. देखेंगे हम इसको जब सिंपल क्यूबिक BCC FCC बनाएंगे, फिर इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो, किसी को कंफ्यूजन ना हो ना, ABC क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने बता दिया। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लैटिस कोई बताएगा? फर्स्ट लैटिस कौन सी? सिंपल क्यूबिक, क्रिस्टल 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 क्यूबिक 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 क्यूबिक। हाँ ठीक है, ट्राई क्लिनिक भी हो सकता है, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। क्यूबिक। व्हाट इज द ब्रेवे लैटिस ऑफ क्यूबिक? सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, I'm centered, face centered, simple cubic, body centered cubic and face centered cubic। ठीक है ना, face centered cubic। See, this is our crystal। क्रिस्टल मींस, देखो मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ। सर वॉइस कट रहा है आपका। हेलो हेलो नहीं हेलो, सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, देखना मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करोगे, यू विल कनेक्ट। क्रिस्टल के नीचे जो भी चीज आएगी ना, the things will be under the column of crystal, directly or indirectly that will related to mathematics। Cubic means what? The three side cube, three side. This is our crystal structure. But in that cubic system, there are three types of Bravais lattice: 1, 2, and 3. Understood? Okay. What will the orientation here? Anyone? बीटा गामा 90 डिग्री होना चाहिए और ए बी बराबर होना चाहिए सी बराबर अल्फा बीटा = 90। तीनों साइड्स बराबर हो और तीनों इंटरफेशियल एंगल, ये अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। ओके, so the all the lattice parameter must equal and all the means interfacial angle must equal, and that should be equal to 90 degree। okay। Second one is tetragonal। tetragonal, anyone? What is the Bravais lattice of tetragonal? Just simple and body centered. Simple and body centered। simple tetragonal and body centered। See, हमारे सिलेबस में जो मतलब ऑल द अमंग ऑफ 14 Bravais lattice जो हमें थॉरोली पढ़ना है, जो हमें स्टडी करना है, दीज आर द 4 एक्चुअली: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं होते उससे? ऑब्वियसली होते ही होते। नहीं सर, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा ना ऑड लगता है, मतलब इस तरह से, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा मौसम चेंज इधर दिल्ली में ना, बहुत ज्यादा इस समय कभी धूप कभी बारिश ऐसा मौसम हो रहा है। ओके, so in the tetragonal there is a two type of Bravais lattice। what is the orientation of Bravais lattice? Anyone? Sir, A equal to B, A but is not equal equal to to C. B doesn't equal to C। And what about interfacial angle? Sir, 90 degree. Alpha beta gamma. All are equal and that will be equal to 90 degree। See, I am saying again, you know, you do not need to go all in means deep for the what is simple tetragonal, what is body centered tetragonal. Again I will write orthorhombic, what is orthorhombic, what is
मीन्स सिंपल ऑर्थोरॉम्बिक, यू डोंट नीड टू गो देयर, ठीक है ना। जब अगर आप पीएचडी करोगे आगे चल के, आप वहां स्टडी करना है इसकी। जस्ट बी योर कोर्स ओरिएंटेड, योर सिलेबस ओरिएंटेड। आपके सिलेबस में क्या है? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड फॉर द क्यूबिक, एंड वन इज हेक्सागोनल, ठीक है ना। सो but this is just for your information that okay, the crystal is tetragonal structure and the Bravais lattice is of two types, which has this type of orientation. What is the third one? Orthorhombic. Orthorhombic. Okay. How many type of Bravais lattice for the orthorhombic? Four, sir. 4. Our third one is orthorhombic. Orthorhombic. 4 types. Which one? कौन कौन से होंगे ये? और फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। सिंपल ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक है ये, ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोरॉम्बिक। बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक, फेस सेंटर्ड, ऑर्थोरॉम्बिक, एंड लास्ट वन इज बेस सेंटर। एग्जैक्टली, एज सेंटर या बेस सेंटर, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। बेस सेंटर और एज सेंटर बोथ आर सेम, दैट इज एज सेंटर बॉडी क्यूबिक, बेस सेंटर ऑर्थोरॉम्बिक। Okay, will anyone tell what is the orientation? Sir, What A, is B, C are not equal. A not equal सर B? एज सेंटर को क्या बोल सकते बोले आपने, ऊपर बताना प्लीज। H center और base centered. ओके Okay. Okay. इसका इंटरफेशियल Sir, angle 90. Angle equal to 90. एक एक लोग बोलो। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है ना। एक कॉलम और बचा के रखना, वन कॉलम प्लीज रिमेन, वन कॉलम फॉर द वॉल्यूम, ठीक है ना। इसमें स्पेस नहीं बचा था इसलिए मैंने नहीं लिखा, वन कॉलम प्लीज लेफ्ट फॉर द वॉल्यूम। ओके, फोर्थ वन, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, ओके, व्हाट विल द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइगोनल? तो वहां पे सिंपल एंड बॉडी सेंटर ही आएगा। ट्राइगोनल लैटिस, क्या होगा ट्राइगोनल का? तो सिंपल रहेगा एंड बॉडी सेंटर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ट्राइगोनल एक ही होता है, ओनली सिंपल। सिर्फ सिंपल क्यूबिक रहेगा सर। अच्छा, ट्राइगोनल को एक और कुछ और बोलते हैं, पता है आपको किसी को? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। कहीं रोम्बोहेड्रल लिखा आ जाए ना तो मत कहना सर ने नहीं पढ़ा है, ट्राइगोनल ही होता है, आल्सो कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल प्रॉपर्टीज, ब्रेवे लैटिस सिर्फ एक होती है, सिंपल ओनली, ओके, सिर्फ वन, सिंपल। ओरिएंटेशन प्लीज, एनीवन, ओरिएंटेशन? A is equals to B is Alpha beta at 90 degree, gamma does not equal to 90 degree. A equal B equal C, alpha not equal beta equal gamma, right? Less than 120 degree. किसी का माइक प्रॉब्लम सर किसी का माइक अनम्यूट है। will be 90 degree, okay. Alpha will be equal to beta will be equal to gamma, but this will not be equal to 90 degree, okay. मैं ऐसा करूंगा ना, I will do means I will send you the screenshot, okay. किसका स्क्रीनशॉट? जिसमें सारे ब्रेवे लैटिस बने होंगे, जैसे मतलब स्ट्रक्चर देखने के लिए सिर्फ आप उसको, आपको यू डोंट नीड टू मींस ड्रॉ ऑन योर कॉपी, नो, जस्ट फॉर योर मींस देखने के लिए कि कैसे कैसे होते हैं ये, ओके। आई विल सेंड यू, यू कैन ऑल्सो गेट ऑन गूगल ऑल्सो, ऑन एनी बुक ऑल्सो, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागोनल? Sir, it is also simple cubic. Actually, let me change the chalk. Okay, hexagonal will also be the only simple one, single, simple. hexagonal. What is the orientation of hexagonal? So alpha equal to beta equal to 90 degree, but gamma equal to 120. First, tell me about the lattice parameters. Means A, B, C. A is equals to B is equal to B, not equal to C. And what is the relation of interfacial angle?
Gita 90 degree. For beta is equals to 90 and gamma is 120. 120 डिग्री ओके इसकी हम स्टडी थॉरोली करेंगे अपने सिलेबस में कंप्लीट स्टडी करेंगे हेक्सागोनल की ओके सेकंड वन मत मीन सिक्स्थ वन मोनोक्लिनिक monoclinic how many Bravais lattice are there for the monoclinic? So simple and base center. Exactly. First one is simple monoclinic and other is body centered monoclinic. Okay, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बॉडी सेंटर मोनोक्लिनिक ओरिएंटेशन क्या होगा कोई बताएगा तो A B C are not equal. A is not equal to B not equal to C. What about interfacial angle? Sir, they are equal not equal to 90 degree. Sorry please again. Sir, alpha equal to gamma 90 degree होगा gamma is equal to 90 but beta is equals to 90 but not equal to beta. कुछ ऐसे होगा? Is it correct? Yes. Okay. And the last one is how? Which one? क्या बच गया? Triclinic. Triclinic. How many Bravais lattice are there? Only one. Simple. And orientation is? Also A equal not equal to B. कुछ भी बराबर नहीं होगा इसका. A not equal to B not equal to C. Alpha not equal to beta not equal to gamma. Okay. Understood? Yes sir. Yes. ठीक है ना? So जरा count करो आप लोग. Let count on your copy. How many types of crystal structure are there? Crystal structure. 7 crystal structure. 14 Bravais. And how many Bravais lattice? 14. 14 types of Bravais lattice. ठीक है ना? Now do one thing. Just write down as a note. Heading डालो note. उसमें आप ऐसे करके इसको लिखो. मैं बोल रहा हूँ. Note में आप लिखो. I'm dictating. In two dimension, there are 4 crystal structure and 5 Bravais lattice are possible. In 2 dimension, there are 4 crystal structure and 5 Bravais lattice are possible. While in 3 dimension, I am saying that in 2 dimension, there are 4 types of crystal structure and 5 types of Bravais lattice are possible. While in 3 dimension, there are 7 types of crystal structure and 14 types of Bravais lattice are possible. ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए because I'm telling you JEST 2013 और 14 JEST के एग्जाम में JEST I guess it was 2013 there was a direct question how many Bravais lattice are possible in 2 dimension? What will be the answer? 5. ठीक है ना? तो यहां से ऐसा 1 mark question for the JAM people and for the नेट के लिए तो भाई आपको पूरा आना चाहिए क्योंकि फिर वो ये सब नहीं पूछेगा 3.5 नंबर में या 5 नंबर में थोड़ी नहीं सब पूछेगा ठीक है ना वो तो आपको फिर पूरा इंटरफेशियल एंगल वगैरह पूरे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और जैम को भी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप लोग के लिए कुछ रिलैक्सेशन है इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन द सिलेबस ओके एंड वन मोर कॉलम you all people have left for the volume okay so just write down the volume क्योंकि कई बार ना वॉल्यूम पर भी क्वेश्चन आ जाता है जैसा कि जो मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किया है द क्वेश्चन आई सेंड यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप दैट इज सोनली बेस्ड ऑन द वॉल्यूम कॉन्सेप्ट एक एक करके सबका वॉल्यूम लिखते हैं पहला क्या था क्यूबिक था ना फर्स्ट वन वाज क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक विल बी a cube ऑब्वियसली ठीक है ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसके सामने उसका वॉल्यूम आप लोग ना उस कॉलम में लिख लेना वॉल्यूम के कॉलम में ओके व्हाट वाज द सेकंड वन टेट्रागोनल यस सर ओके
tetragonal. What is the volume of tetragonal? Anyone? A square C. Yes, exactly. पुनीत बोल रहे हो आप? नो सर. पुनीत ने अभी वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिना इस वॉल्यूम के इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता. कहाँ है पुनीत? बताओ भाई, कहाँ हो? सर हूँ सर, क्लास में हूँ सर. अच्छा, क्लास में हो. ओके, टेट्रागोनल के साथ चलो अभी मोनोक्लिनिक में तुमसे पूछूंगा. व्हाट वाज द थर्ड वन? ऑर्थोरोम्बिक. Yes, sir. ऑर्थोरोम्बिक. व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ ऑर्थोरोम्बिक? ABC. ABC. वेरी गुड. ट्राइगोनल. ट्राइगोनल का वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ ट्राइगोनल. एनीवन? डोंट नो? नो प्रॉब्लम. दिस इज बेसिकली a स्क्वायर c साइन 60. a स्क्वायर c साइन 60. ये पूरा डिराइव करके आता है, मैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है. a स्क्वायर c साइन 60. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? अंडर रूट 3/2. √3/2. So the volume will be √3/2 a square c. ठीक है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर. No, ओके. sir. हेक्सागोनल, ये तो सबको पता होगा, सब लोग एक साथ बोलेंगे. हेक्सागोनल. अरे ग्रेजुएशन में आप लोग ने पढ़ा होगा ना हेक्सागोनल के बारे में. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 हेक्सागोनल into लैटिस? root 3/4 into a square into c. √3/4 a square c. into 6 भी. सर वो एक इक्विलेटरल अरे ट्रायंगल का एरिया अरे, ट्रायंगल के एरिया नंबर ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई करके बताओ ना. 3√3/2. ओके, 3 बट root 3/2 into a square. सी दिस इज बेसिकली, देखो, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल जो होता है ना, उसको दो तरह से डिफाइन करते हैं. एक तरह से, मतलब डिफाइन क्या करते हैं, दो तरह से लिखा जा सकता है. एक होता है वॉल्यूम ए एंड सी के टर्म में. सी क्या होती है? हाइट होती है ना, हेक्सागोनल लैटिस की हाइट होती है सी. एक तो वॉल्यूम उसके टर्म में लिखा जाता है, एंड दैट इज हाउ मच? दिस इज √3/2 a स्क्वायर सी, सेम एज ट्राइगोनल. ठीक है ना? और फिर आपको पता होगा कि जिसने भी पढ़ा हो कि एक c/a का रिलेशन होता है फॉर द हेक्सागोनल लैटिस. देयर इज अ रिलेशन ऑफ c/a रेशियो जिसको बोलते हैं, एंड दैट इज √8/3. ठीक है ना? वहां से जब आप c की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल के रखते हो ना, दैट इज कम आउट टू बी 3√3/4 a क्यूब. ओके, सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल लैटिस इज √3/2 a स्क्वायर c. कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट कोई? सर वो रिलेशन अभी बोला ना, वो एक बार लिख के छोड़, दूंगा. हेक्सागोनल लैटिस में देख लेंगे, डोंट वरी. अरे मैं ओके. बता देता हूँ. c/a रेशियो होता है, दैट इज √8/3. जब यहाँ से आप c की वैल्यू a के टर्म में रख देते हो ना, तो फिर वो वैल्यू चेंज हो जाती है. ओके सर. डोंट वरी, देखेंगे उसको. कौन सा बच गया? मोनोक्लिनिक बच गया. बताओ भैया पुनीत, आपने आपने ही सॉल्व किया ना उस क्वेश्चन को. व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक? That was ABC sin beta. ABC sin beta. Volume of monoclinic is equals to ABC sin beta. ठीक है ना? एंड लास्ट वन, ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक बचा है ना सिर्फ अब. वॉल्यूम ऑफ ट्राइक्लिनिक किसी को पता है? ट्राइक्लिनिक का वॉल्यूम पता है? एक्चुअली इसको ना ही जानो तो ठीक है, बट मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? इतना अरे कभी नहीं पूछेगा. ABC ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा ऑफ पावर 1/2. कोई जरूरी है इसको याद करना? छोड़ो, ठीक है ना? सो दीज आर द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर द 3 डायमेंशन. बात सही है? समझ में आ गया? यस Yes, सर. sir. क्वेश्चन करें Yes, sir. जो मैंने भेजा था, एक स्टूडेंट ने किया, बाकी ने नहीं किया है. प्लीज फॉलो दैट क्वेश्चन. Okay, sir. उस अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, उस क्वेश्चन को देखो, मैं भी देखता हूँ. देखो क्वेश्चन, देखो हो जाएगा ये.
प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन भी भेज दिया है पुनीत ने, प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है ना। विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए देखो आप ये सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 47 एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 47, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जैम 2021, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जैम 2021। प्लीज सॉल्व एवरीवन, प्लीज सॉल्व एवरीवन। मैं भी यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 47, this is from JAM 2021, JAM 2021. Question is saying a crystal has monoclinic structure. Crystal कैसा है initially? Monoclinic, monoclinic, okay. And their respective lattice parameter has been given, and it is given that A is equals to 5.14 angstrom, B is equals to 5.20 angstrom, and C equal to 5.30 angstrom. And angle beta is 99 degree. Beta is 99 degree. Now the question is saying this monoclinic structure undergoes a phase transition. इसका phase transition हो जा रहा है, ठीक है ना। It undergoes a phase transition, phase transition. And when it goes through the phase transition, it has been converted into tetragonal. ये किस में convert हो जा रहा है? Tetragonal structure में convert हो जा रहा है. It has been converted into tetragonal structure, and the lattice parameter of tetragonal structure has been given as A is equals to 5.09 angstrom and C is equals to 5.27 angstrom. Okay, now निकालना क्या है? The fractional change in volume. We have to find the fractional change in volume, that is delta V upon V. Please फाइंड आउट करो सब लोग, देखो हो रहा है। प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन, इट्स सो ट्रिवियल। हो जाएगा? अरे बोल दो। यस सर, यस सर। चलो करना क्या है, पहले मोनोक्लिनिक का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक, ठीक है ना, सब कुछ तो दिया हुआ है आपको। फिर टेट्रागोनल का निकाल लो, उसके बाद इस फ्रैक्शन को निकाल लो। ओके भाई देखो कितना क्लियरली उसने सब कुछ दे रखा है, हाउ क्लियरली दे हैव गिवन ऑल द डेटा, ए बी सी बीटा भी दे रखा है, ठीक है ना। वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू नो, मींस क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया है वो क्या जानना चाह रहा है, दैट वेदर यू नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक एंड टेट्रागोनल और नॉट। उसके बाद क्या, मल्टीप्लीकेशन ही तो है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन माइनस यही तो है ना। ओके चलो सॉल्व करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, सब लोग सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व एवरीवन, जस्ट 2 or 3 minutes you have. 7 into 10 raised to minus 3। नहीं 7, नहीं 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 नहीं, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, डेल्टा वी अपॉन वी की। वही सर, यही आ रहा है? नहीं इतना नहीं आएगा। 0.02346 एग्जैक्टली 0.02 इज द करेक्ट आंसर, 0.024 इज द करेक्ट आंसर। देखो आ रहा है सबका ये 0.024, एवरीवन गेटिंग दिस आंसर और नॉट? सर मेरा आ रहा है 0.021। ठीक है, जो IIT जैम ने जो आंसर की रिलीज किया था ना, द आंसर की रिलीज गिवन बाय द IIT जैम, मतलब जिस भी IIT ने उसको सेट किया था, दे हैव गिवन द रेंज एंड द रेंज वाज 0.02 to 0.03, इसके बीच में जिसका जिसका आंसर था वो सब सही था, ठीक है ना। तो उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि 4 आया 1 आया, डोंट वरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है सबका आंसर? किसी एक का भी नहीं आ रहा हो तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूं। यस सर। सर पहले का तो a स्क्वायर c लेंगे ना हम, माइनस ए बी सी साइन है। मोनोक्लिनिक का, मोनोक्लिनिक का हाँ डेल्टा v में, नहीं, डेल्टा वी में हमें दोनों वॉल्यूम को माइनस करना है, माइनस करना।
ठीक है ना। अच्छा डिवीजन, अब मैं समझ गया, इस यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ना, डिवाइड किस वॉल्यूम से करें? ओरिजिनल वॉल्यूम जो से। पहले वाला ओरिजिनल जो मैंने वॉल्यूम, एग्जैक्टली, हाँ वही खेलना इनिशियल है। था, हाँ। सो बेसिकली अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूं आप लोग के लिए और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। इसको जो लिखेंगे ना वो होगा V of monoclinic minus V of tetragonal divided by V of monoclinic। अब इसकी वैल्यू तो निकाल लोगे ना? सबका आ रहा है 0.02? किसी को भी प्रॉब्लम है? एक पर्सन को, हाँ यस। सर मुझे ये पूछना था कि आई नो बहुत ही सिली डाउट है, बट अभी हमने कहा कि रेंज दे रखी है आंसर में, हाँ तो सर वैसे राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस है, तो 0.02 ही आएगा ना सिर्फ, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस है। पहली बात तो ये जान लो कि कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुछ भी आप में से कोई भी लोग पूछने से पहले बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। एनीवन प्लीज डोंट हेजिटेट बिफोर आस्किंग एनीथिंग, वेदर इट इज सिली और नॉन सिली। हु विल डिसाइड वेदर इट इज सिली और नॉन सिली? ओके, नो वन कैन डिफाइन इट। अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं। 2 डेसिमल प्लेस अगर दिया है तो हाँ 0.02 या 0, बिल्कुल। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिख तो देता है 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस तो यहाँ पर हो गया, 0.02 कंफर्म हो गया, ठीक है ना, यस सर। 0.02 हो गया। अब अगर इसके आप 3rd डेसिमल प्लेस तक लिख दोगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम में इफ ही इज आस्किंग दैट राइट द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेस, एंड इफ यू आर पुटिंग द आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस और 4 डेसिमल प्लेस, नो नीड टू वरी। जितना उससे कहा है उससे कम मत कर देना, उससे ज्यादा तुम खींच ले जाओ, 10-12 डिजिट तक दे दो, कोई इशू नहीं है, ओके सर। ठीक है ना। तो जिसका 2-1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, सब लोग सही हो, बस 0.04 नहीं आ जाना चाहिए, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओके वो ओके। डबल डबल का डिफरेंस दे देगा ना, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ डबल एक्चुअली। आ रहा है ना सबका 0.02? यस सर। यस सर। ओके तो यस। मुझे ना ये हाँ साइन हाँ, 99 का जो साइन 99 के थे उसका कैसे वैल्यू डालना, उसको प्रॉब्लम आ रही अरे कैलकुलेटर से डालना है, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा ना एग्जाम में, एग्जाम में कैलकुलेटर तो अवेलेबल होगा ना जैम में, साइन 99 वहां से सर। दे देना। हाँ, सर इन रेडियंस और डिग्री अरे डिग्री डिग्री पे 19, इट्स अ 99 डिग्रीज गिवन, इट इज 99 डिग्रीज गिवन ना, 99 डिग्री की वैल्यू आप रखोगे ना। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है ये। तो देखो कैसे क्वेश्चन आया है, ब्रावे लैटिस के वॉल्यूम से, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट उसने पूछ दिया। ओके यस, एनीवन वाज सेइंग समथिंग? Okay, so let's stop here. From tomorrow onwards, we will start our different type of crystal structure. So from tomorrow onwards, I will start simple cubic. Okay, then body centered, then face centered. Okay. ओके थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you. See you. थैंक यू सर।